चलिए, तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस, देखते हैं आप लोगों को कोई चीजें पूछनी है तो आप हैंड रेज करें और फिर हम लोग बात करते हैं। और अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो वो भी कर लें, ताकि मुझे भी दिखे कि आप लोग के चेहरे देखने को मिलेंगे। फिर हम बाद में कभी मिलते हैं तो मैं पहचान तो लूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। हाँ भाई, कोई कुछ पूछना चाहता है? आपकी कोई अपने खुद के क्वेश्चंस हो, आप हैंड रेज कर सकते एक्सक्यूज हैं। मी सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर तिरु सर। थिरू, हाँ थिरू। सर आई एम फ्रॉम तमिलनाडु सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सर currently in physical chemistry solid state is going on sir. Yes. Sir, I'm unable to cope up with that chapter only, sir. I was able to cope up with mole concept, sir, but when it comes to solid state, sir, I feel that sir is going like fastly, sir. Like you had problem with solid state earlier also? Sir, sir, I'm studying with JH, sir. Okay. No, I'm asking that you had problem with solid state earlier also, or you are facing the problem first time? Yes, sir. Yes, sir. Was it your weak Please, chapter earlier? sir, it was not weak, sir, but I studied full NCERT, sir, but even though I was unable to Okay. So do cope one up. thing. Do one thing. What you have to do is solid state is all about like making structures. First thing, like don't try to imagine them only. Try to draw them on papers. Like what are unit cells? Okay. So Yes, what are sir. the different types of unit cells? So you draw them on paper. Don't just take information. Let's say if I tell you that it's an FCC unit cell. Okay, sir. So FCC unit cell, you should draw on paper first how it looks. You should draw by yourself and Okay, sir. explain it to yourself only. Okay, these are the atoms which are present at corner, and with corner atoms are also present at face center. Then you have to work on the analysis part of unit cells, like how many atoms are there, what is the coordination number. Coordination number is important. I think you may be having problem with identifying the coordination number. So you have to visualize them on paper, like you have to draw them on paper and try to find out that yes, this is the coordination, but it should like it should be visible to you. It should be very clearly visible to you. So try explaining things to yourself only. Okay, sir. Okay, and then start with questions. Like Okay. there are like, how many lectures have you got till now? Sir, 3, sir. 3 lectures. So I think you must have reached up to packing. Sir, he went to ABAB. Yeah, Type. that is called packing of atoms actually. So before that, have you tried the questions of PSS, problem solving session? Tell me honestly. Sir, no, sir. I'm still stuck in the first lecture, sir. So only I'm asking. In the first lecture, you must be having the basic information like what are amorphous solids, crystalline solids. Yes, sir. Yes, sir. I had understood that one, sir. And then Bravais lattices. Yes, sir. So what issue are you facing in the first lecture? Like? Sir, actually, when I study this solid state, I can understand everything properly, sir. But after 1 day or 2 day, totally, when I see it, totally I get no idea of it. So I'll suggest you, Thiru, you start solving questions. First, solve the questions of PSS, PSS1 and PSS2. Okay, sir. That you have to do first. You're not solving questions actually. So don't do that, because without solving questions, you will not get the concept clearly. Okay, sir. So start solving PSS first. That is important. After that, you will like again, you have your notes now. So start working on that. Like you cover lecture 1 and lecture 2 through your notes. Again, go through the notes
and then Okay. start solving the PSS. And if you get doubts, you can ask to sir directly. Okay, you have your group, you can post your doubts in there also, and soon Yes. you will be having a live doubt session also for solid state and mole concept both. So you can ask your doubts in there also. Okay, so don't lose hope, and don't think like that you are not getting things. You have to work extra. If you're not understanding some topic, you have to invest time in that, Okay. because there will be a question from solid state, and it should not be like this that you are not able to do that question. So you have to do it anyhow, you have to do it, and this is the time to work on that. Okay, sir. Okay, so do it, and let me know in the next session like whether it helps or not. Okay, sir. Sure. Yes, anyone else? Hello, sir. Hello, please tell your name. Sir, Priyanka. Priyanka. Good evening, sir. Good evening. Good evening. सर वो जो सॉलिड स्टेट के पीडीएफ है वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए. पीडीएफ्स अटैच हो जाएंगे आपके लेक्चर के साथ. वैसे आप कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो? क्लास सर वाले? वो सॉलिड स्टेट. नहीं, क्लास वाले पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? हाँ, क्लास में सर, जो वो क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे आप पढ़ाए थे. ओके, वो अटैच हो जाएंगे, मैं कल करवा दूंगा. ओके सर. वैसे आपको वो उनके नोट्स बनाने हैं, पता है ना आपको? मैंने पहले भी कहा था, नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, पीडीएफ पे डिपेंडेंट मत रहो. सर वो बस मुझे सॉलिड स्टेट के चाहिए क्योंकि उसमें थोड़े स्ट्रक्चर वगैरह हैं तो उसमें टाइम लग रहा है. मैं समझता हूँ, पर आप अगर टाइम नहीं दोगे तो आप उन्हें खुद से बना के विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सर उसके लेक्चर मैंने पहले देखा और उसका नोट्स भी मैं बना चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ बस जो अलग से इम्पोर्टेंट लगे वो अपने नोट्स में डालूं ऐसा. वो मैं समझ गया आपकी बात, बट पॉइंट इज, जैसे एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स में डायग्राम बनाना है, वो आपको खुद से बनाने चाहिए. वॉइड जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इन सब के डायग्राम्स आपको खुद से बनाने हैं. वो आप ध्यान रखना. वो पीडीएफ तो शेयर हो जाएगी, बट आपको विजुअलाइजेशन सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ना कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एटम टू एटम देखना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस निकालना, ये सब. तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनके नोट्स आप बनाएं. आपके बने हुए हैं एक बार, तो आप स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट खुद से पेपर पे बना के जरूर देखें. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. हेलो सर. हाँ, अपना नाम बताओ. अवनीश सर, अवनीश रंजन. अवनीश. गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. सर जब सर इनऑर्गेनिक का सर एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं सर, तो सर उसको थ्योरी पूरा पढ़ ले या उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चले सर? क्या करो, वापस बोलो मुझसे एक बार आप. सर जब इनऑर्गेनिक का जब एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं सर, उसको जब पूरा पढ़ ले या उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चले साथ साथ? हाँ, शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको साथ साथ. शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा सर पूरा? अभी एनसीईआरटी आप अलग से पढ़ रहे हो? यस सर. अभी आप मत पढ़ो, क्योंकि उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम जाएगा. जब चैप्टर शुरू होंगे, अभी केमिकल बॉन्डिंग है. ये सर जैसे सुबह उठ के सर आधा घंटा या 1 घंटा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, मतलब भूले नहीं. रीडिंग लगाते हो ना, तो फिर आप हाईलाइटर यूज कर लो. अभी तो हाईलाइटर सर? अभी हाईलाइटर यूज कर लो, फिर जब वो चैप्टर चलेगा ना, यस सर, उस टाइम पे फिर शॉर्ट नोट्स बनाते जाना उसके साथ साथ. फिर आपके ना, वरना क्या होगा ना, अभी आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, फिर वो लेक्चर चलेगा, लेक्चर में आपको कुछ और एडिशनल चीजें देखने को, सीखने को मिलेंगी. यस सर. तो फिर उसको फिट करना आपके लिए डबल काम हो जाएगा. तो अभी आप हाईलाइटर यूज कर लो, फिर जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पर, तो फिर आप उन दोनों को क्लब करके शॉर्ट नोट्स बना लेना. ओके सर. अच्छा सर, 11th में जो सर चैप्टर पढ़ चुके हैं सर पहले से ही पिछले साल, तो सर जो अपने 11th से नोट्स बना रहे हैं, दोनों सर दोनों पढ़े क्या, जो अभी बनाए वही पढ़े? जो बना रहे हो वो नोट्स पढ़ो, और दिमाग से एक चीज निकाल दो कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है. उसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं उसका रीजन क्या है. उसमें ये होता है कि हमको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मुझे आता है, फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, या उसको स्किप कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में, आप ऑनलाइन हो. ठीक है, तो कई बार छोटी छोटी चीजें होती है जो मिस आउट कर चुके होते हैं. अभी ये एटीट्यूड भूल जाओ कि आपको कुछ भी आता है, मतलब आप ये मान के चलो कि नहीं आता, उससे आप और अच्छी लर्निंग लेकर जाओगे, आपको और बूस्ट होगा वो आपको आता है. उसको आप ये कर सकते हो कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप उसको 1.5x स्पीड पे देख लो, बट स्किप कुछ मत करना बस. ओके सर, थैंक यू सर.
Okay. Good evening, sir. Sir, Good evening. This is Kanika. हाँ कनिका. सर ये पूछना था कि सर वो जो प्रिंटेड मटेरियल सर आप बोले थे वो कब तक आ जाएगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर अभी बस फोन। विद इन अ वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको वो भिजवाना शुरू करवाता हूँ. नेक्स्ट वीक. ठीक, थैंक यू सर. ओके. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर अपना नाम 7 बताओ मुझे. आपको विद्याभूषण. विद्याभूषण. एक सेकंड, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो? चलो बताओ. हाँ ये रहा. सर 7 to 2 सर जो आपने बोला लेक्चर देखने के लिए. आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, मुझे देखो, मैं देखूं तो सही आप लोगों को. आप कौन कौन कैसे कैसे दिखते हो मुझसे. मेरे को कभी मिलोगे कहीं पर, मैं आपके शहर में आया या आप हमारे इधर आए तो मैं पहचान तो लूंगा आपको कम से कम. यस सर, यस सर. हाँ ये बात है. सलमान भाई हो रहे हो आप तो. सर सलमान भाई हो रहे हो आप तो. सर आपने बोला था ना 7 to 2 लेक्चर देखने के लिए. हाँ. सर वो 7 to 2 में लेक्चर हो ही नहीं पा रहा है सर. क्यों? एक स्ट्रेच में करना चाह रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा है सर. क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर जो फर्स्ट वाला पार्ट जो थ्योरी वाला पार्ट है वो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है नोट डाउन करने में. लगेगा. और प्रैक्टिस सीट जो 30 मिनट का है उसको मतलब खुद से सॉल्व करने में 1.5 घंटा के लगभग का समय लग जा हाँ रहा तो है. फिर वो आपकी सेल्फ स्टडी हो रही है ना साथ में, उसको थोड़ा, एक तो देखो 1.5 घंटा मत लगाओ उसमें. यस सर. उसमें थोड़ा स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी. 30 मिनट Yes. के आपके 45 मिनट लग सकते हैं. अब अगर आप Yes, sir. उसको कर रहे हो ना, आप दो Yes, काम sir. कर रहे हो. आप समझो, आप लेक्चर आपका होगा कि आपकी वो सेल्फ स्टडी भी चल रही है उसके अंदर. यस सर. तो जो अपने बाद के 7 घंटे है ना, उसका कुछ पार्ट आप वहां यूटिलाइज करो, चिंता मत करो. सर तो वो आप जो 2 बजे तक कर रहे हैं वो 4-5 बजे तक हो रहा है तो फिर खत्म. उसमें आप ब्रेक दो. अगर आपसे उसमें एग्जैक्ट टाइम में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक दे दो. फिर आप एक बनाओ 4 घंटे का स्लॉट और दूसरा बनाओ 4 घंटे का स्लॉट. और सर एक्सरसाइज को फिर किस तरह से मैनेज करें जो पीपीएस के अलावे दिया गया है? तो पीएसएस के अलावा जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी ना, उसके लिए फिर तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा. अभी आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी उसके अंदर. तो एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हो कि आपको एडिशनल टाइम, एक तो आप संडे यूज कर सकते हो थोड़ा सा. यस सर. ठीक है. और मतलब आठ फर्स्ट आठ प्रायोरिटी घंटे तो देखो, पीपीएस को दे. 8 घंटे अगर आप लेक्चर कर भी रहे हो, ठीक है, तो Yes, sir. आपको एक साथ कोई होमवर्क नहीं दे रहा है. होमवर्क टुकड़ों में No, ही sir. मिलेगा. ठीक है. तो Yes, sir. 24 में से 8 गए, 16 घंटे बचते हैं आपके पास. यस सर. 16 में से आप 7 घंटे सो लो, यस सर. 9 घंटे हैं. यस सर. 9 में से 2 घंटे आपके खाना पीना जो भी करना है वो कर लो. अब आपका मी टाइम खींच लूंगा बस मैं, आप अपने लिए टाइम थोड़ा कम निकाल पाओगे शुरुआत में. यस सर. क्योंकि देखो सारा गेम ना कॉन्फिडेंस का है, शुरुआती कॉन्फिडेंस का. आपको शुरुआत में Yes, sir. मजा आने लग गया ना पढ़ने में, तो आप एंड Yes, तक sir. खींच जाओगे. तो अभी आपको वो पढ़ने का मजा लेना है. उसके Yes, बाद sir. ये पास 7 घंटे बच रहे हैं. 7 नहीं तो 6 घंटे तो बचेंगे बचेंगे. यस सर. तो 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाओ तीनों सब्जेक्ट के और क्वेश्चन सॉल्व करो होमवर्क. ओके सर. है ना, ये बहुत तो पहले इम्पोर्टेंट. पीपीएस को ज्यादा प्रायोरिटी दे. प्रायोरिटी दोनों को देनी है. पीएसएस को भी देनी है. पीएसएस आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा. ठीक है. यस सर. पीपीएस नहीं है, वो पीएसएस है. यस सर, सॉरी पीएसएस. हाँ तो उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, क्योंकि आपने जो लेक्चर में सीखा वो वहीं पे आप उसको उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप कर रहे हो इसलिए. फिर आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शीट में भी. तो वो sir. आपने जो सीखा अब उसको अप्लाई करना आप शीट से ही सीखोगे. इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है. अभी हमने वैसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, शीट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, तो इतना करना पड़ेगा. देखो अब आपको इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा. और अभी बहुत क्रूशियल टाइम है. अभी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आगे दोबारा कभी कवर अप नहीं कर पाओगे. और अभी आपने आदत बना ली तो आपके लिए वो केक वॉक की तरह हो जाएगा कि हाँ ये तो मैं रोज ही करता हूँ. यस सर. है ना. हैबिट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर आपकी. यस सर. थैंक यू सर. ओके. sir, हाँ कौन? अखिलेश. sir, this is again Thiru, sir. अगे थिरु. यस थिरु. Sir, you told to take short notes at the end of each chapters, no, sir. Yes. Sir, I too tried that one, sir, but I'm not getting time for that one, sir, because the whole time goes for lectures and practice PSS itself. Actually, it's a
it's a like basic requirement. It will help you when you'll revise things. Sir, I mean, how much time should we dedicate for that one? See, when you're when you're covering the lecture, so just Okay. after you have covered lecture, you have to just invest 10 minutes, 5 to 10 minutes to make the short notes of a particular lecture. Okay, sir. It will hardly take 10 minutes, not more than that. Okay. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? सर अखिलेश। अखिलेश, अरे आप अखिलेश यादव हो क्या, सपा वाले? नहीं सर। नहीं हो? अच्छा सर ये बोल रहा हूँ सर, जैसे सर कुछ क्वेश्चन होते हैं सर, जैसे सर एक बार कर लेता हूँ फिर सर जैसे दोबारा देखता हूँ तो हाँ, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा क्योंकि सर आप उसको ना याद करने की कोशिश करते हो कि पिछली बार कैसे किया था। वो ना आप हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन मान के चलो। देखो सबसे सिंपल सी बात होती है, जब भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पेपर देने गया था ना तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने 3-4 दिन पहले किसी मॉक टेस्ट में दिया था, सेम क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन। तो अखिलेश, हाँ आप अपना इशू डिस्कस करते हैं हम दोबारा से। तो पॉइंट ये था कि आप ना मतलब हर क्वेश्चन पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, और फिर हर बार क्वेश्चन को नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। उसको ये मत सोचो कि मैंने पहले किया हुआ है, आप उसे रिकॉल कर रहे हो। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, एक तो है ना। ठीक है। यस सर। और उसके अलावा क्या फेस एक्चुअली वैसे और क्या प्रॉब्लम फेस होती है आपको, मतलब कंसेप्ट के टाइम, क्वेश्चन के टाइम? जैसे सर एक बार सर जो सर पीएसएस है सर उसे कर लेता हूँ, तो जैसे सर कभी कभी होता है ना, जैसे टाइम रहता है तो मैं देखता हूँ कि मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था या फिर कौन सा ऐसा था जो मुझे अच्छा लगा था कि मतलब टाइम लग गया था करने में, तो उसे करता हूँ तो सर फिर मतलब उसमें दिक्कत होता है। बट वो टाइम के साथ जाएगा, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, आप ना अपना टाइम के साथ अपना काम करते रहो, आप सही कर रहे हो। वो थोड़ा बहुत लगता है आपको ऐसा, बट जो पीएसएस के क्वेश्चन आपने एक बार किए हुए हैं और जो आपसे नहीं हुआ था, तो देखो उसको सीखने में थोड़ा सा आपको लगेगा, 1-2 एफर्ट लगेंगे। तो उस क्वेश्चन को बीच बीच में एक और बार, जैसे मान लो आपने आज किया, तो फिर आप अपने को म्यूट रखो। एक बार मैंने म्यूट किया हुआ है आपको, तो आप उसको दोबारा एक बार और करो, 2 से 3 बार उसको घुमाओ क्वेश्चन को खुद से। मतलब आज कर लिया, फिर परसों एक और बार कर लिया, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो मिसिंग वाली आदत होती है, कभी कभी लगता है कि हम कोई कंसेप्ट मिस कर गए हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है हमारा वीक रहता है। वो हर क्वेश्चन के साथ आपका नहीं होता होगा ऐसा, कुछ एक क्वेश्चंस ही हैं, दैट मींस वो कंसेप्ट जो है आपका वो वीक हुआ है। तो उस कंसेप्ट के ऊपर एक बार वापस से काम करो, उसको पढ़ो, उस पर क्वेश्चन करो, और फिर से दोबारा से वो पीएसएस वाले क्वेश्चन कर लो, और उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के शीट में से आप क्वेश्चन कर लो, तो आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है। हेलो सर। हेलो, कौन बोल रहे हो? सर मैं वैभव सिंह। हाँ वैभव। सर मेरे साथ सर लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम थी कि सर पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में कि मैं जब भी क्वेश्चंस करता था तो काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मतलब सॉल्व करता था, तो इसकी वजह से मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। सर मैं टफ क्वेश्चंस भी सर कर लेता हूँ, लेकिन सर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से मेंस में और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टफ आने लगी है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। यार देखो, शुरुआत में तो टाइम टेकिंग रहेगा, मतलब जब आप सब्जेक्ट सीख रहे होते हो तो टाइम लगता है। नहीं सर। कितना टाइम लगता है आपको एक एवरेज एक क्वेश्चन करने में? सर 5 to 7 मिनट्स लग जाता है, लेकिन सर ये चीज एग्जाम में सर काफी प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा सर क्वेश्चंस हो मतलब गलत भी कई बार हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और कई बार सर स्ट्रेस हो जाता है वो टाइम। वो आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। मैं भी इन सबसे पूछ लेता हूँ, इन सबको भी मैथ्स का एक एवरेज सा क्वेश्चन ना इजी नहीं होगा, अगर बहुत एवरेज सा क्वेश्चन करने में इतना टाइम प्रैक्टिस के टाइम पे लग जाता है। देखो प्रैक्टिस के टाइम पे आप कंसेप्ट को सीख रहे होते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हाँ, जितना आप जैसे आप क्या शुरू से एक्सपेक्ट करो कि मेरी मेंस के बराबर की स्पीड आ जाए, उसको आने में टाइम लगेगा। पहले आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद एप्लीकेशन बिल्डिंग होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप 1 घंटे में मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन कर पाओ, बट एटलीस्ट 10 तो कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। जब आपकी एक्यूरेसी आएगी फिर आप स्पीड पे काम कर सकते हो। आप एक काम करना, बहुत छोटा सा काम बताता हूँ मैं आपको। आपने मैथ्स की शीट में से या पीएसएस में से कुछ क्वेश्चन किए होंगे? यस सर। एक बार कर चुके हो? यस सर पूरा। आज कभी टाइम निकाल के दोबारा करना उन्हीं क्वेश्चंस को, और फिर स्पीड चेक करना अपनी। यस सर। आपकी स्पीड आपको पिछली बार से ज्यादा मिलेगी।
सर पीएसएस वगैरह में तो सर क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, लेकिन सर एग्जाम में से काफी डिफिकल्ट आने लगे हैं आजकल। नहीं, नहीं। फोर्थ अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए थे तो मैथमेटिक्स में। अभी आपको शीट मिल गई मैथ्स की, यस सर। उसके क्वेश्चन डिफिकल्ट इजी लगे आपको? नहीं सर, सीट तो अच्छा है सर, पीएसएस थोड़ा। पीएसएस में तो आपको हमको क्या कंसेप्ट सिखाने होते हैं ना, तो पहले बेसिक क्वेश्चन भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ आपसे हुए भी नहीं होंगे। अब वो क्या है, आपके सामने टीचर ने सॉल्व कर दी इसलिए आपको लग रहा है कि आसान है, तो वो तो होता ही है हमेशा। और आपसे खुद से होना। अच्छा, आप एक काम करो, आपने शीट में पहले 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे अभी तक, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके? सर अभी तो मैंने सर सिर्फ पीएसएस ही किया है, मतलब मैथमेटिक्स में। अब आप शीट करोगे ना, जैसे मान लो आपने पहले 10 क्वेश्चन किए, यस सर। पहली बार करना उनको, और अगले दिन एक बार दोबारा उन्हीं 10 क्वेश्चन को करना, और दोनों में टाइम का गैप देखना। जब आप दूसरी बार करो ना, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ चुकी होगी, क्योंकि दूसरी बार में आपको अप्रोच का आइडिया रहता है। जब हम पहली बार सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं तो हम कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट एप्लीकेशन लगाते हैं, तो कई बार कंसेप्ट अच्छे से क्लिक नहीं करता है, तो उसको हमें धीरे धीरे टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप एक ही बार में बहुत तेज स्पीड से निकल जाओगे। 3 to 5 minutes एंड एन एवरेज टाइम फॉर मैथ्स क्वेश्चंस, वो आप किसी भी ये सब स्टूडेंट है इन सबसे आप पूछ लो, 3 to 5 मिनट एवरेज लगते हैं एक एवरेज क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी होगा तो आपका 1 मिनट से कम टाइम में, 2 मिनट से कम टाइम हो जाएगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ्स का अगर आप दिल से लगा लो तो आधा घंटा भी खींच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। यस सर। आपको वही समझना है, आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो, आपको अब अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। मैथ्स अपना लेवल कम नहीं करेगा, आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। आप फिक्स कर लो कि यार 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट के बाद छोड़ दूंगा। तो आप एक काम ऐसे कर सकते हो, मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ राउंडिंग का। उसमें क्या होता है, मान लो आपने 20 क्वेश्चन करने बैठे मैथ्स के लिए, आपने टाइम से डिफाइन किया लेट्स से 2 घंटे, और आपको 2 घंटे में लेट्स से 30 क्वेश्चन करने हैं या 40 क्वेश्चन करने हैं, वो आप एक रख सकते हो अपना जो होमवर्क दिया आपको। तो 30 क्वेश्चन अपन लेकर चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने शुरू किया, अब मैंने शुरू किया, हो सकता है पहला क्वेश्चन मेरा 2-3 मिनट में हो गया हो, फिर दूसरे में अटक गया, तो दूसरे में मैंने 5 मिनट अपने इन्वेस्ट किए। 5 मिनट के बाद 6ठे मिनट पे आपको नहीं रुकना है, वो आपको अंदर से फील आ जाएगी कि अभी ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1-2 मिनट और आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं। 7 मिनट के बाद अगले पे मूव कर जाओ। ऐसे ही चलते चलते आप राउंड 1 कंप्लीट करो। तो मान लो राउंड 1 में आपने 30 में से लेट्स से 18 क्वेश्चन सही कर लिए और 12 आपसे नहीं हुए। अब वापस से लगाओ राउंड 2। राउंड 2 में आप जब करोगे तो 12 क्वेश्चन से फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इस तरह से आपका, अब वो टाइम तो लगेगा शुरुआत में पहली बार में, फिर ऐसे ही कभी 4-5 दिन के बाद या संडे को किसी, आप वही डीपीपी उठा के एक बार दोबारा करना, और फिर देखना आपने पिछली बार जो टाइम लगाया था और इस बार जो टाइम लगाया उसमें डिफरेंस है या नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था सेशन में कि चैप्टर खत्म होने तक आपकी शीट आपसे एटलीस्ट 2 बार कर लेनी चाहिए ओके सर। उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो अभी बिल्कुल ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप मेंस वाली स्पीड पे चले जाओगे। अभी कंसेप्ट बिल्डिंग का टाइम है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो। नहीं सर, लास्ट ईयर सर जो चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग भी थे तो उनके भी, जैसे सर मैंने एक मार्च अटेम्प्ट में क्वेश्चन ऐसा पैरा बोला था, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मतलब वो क्वेश्चन सर उसको अगर एक ट्रिक से करते तो बहुत आसानी से होता है, मतलब या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से, और लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा ही बेसिक कॉन्सेप्ट से करने लगता हूँ, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सर 10 मिनट 15 मिनट तक स्ट्रेच हो गया इवन। वो फिर आपको काम करना पड़ेगा उसको, वो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपकी एफिशिएंसी को किल कर रहे हो आप उसमें, क्योंकि देखो टाइम कम है आपके पास, है ना। तो इसमें आपको अपना आउटपुट जो है निकालना है, वो तेज करना पड़ेगा। मतलब आपके इनपुट, आपका इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि क्लास में चीज आपको सिखाई जा रही है जो टाइम सेव करती है इन क्वेश्चंस के अंदर, उन पे आपको थोड़ा फिर काम करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ निपुण बोलो। सर, कौन बोल रहे हो? निपुण? ये सर हाँ। निपुण। हाँ निपुण बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी हमारा 3 अक्टूबर को आपने कहा सर जेईई एडवांस है, तो सर फिर हमारा नेक्स्ट कब टेस्ट होगा? आपका 10 अक्टूबर को होगा टेस्ट। 10 अक्टूबर को। फिर उसके बाद वापस होगा एक हफ्ते बाद ही, 17 को। और सर जो बीच में टेस्ट होंगे वो सारे जेईई मेन वाले ही होंगे कि एडवांस? नहीं, बीच में एडवांस वाला भी रखेंगे। अभी शुरुआत में मेंस वाले होंगे, एडवांस वाले स्पेशल टेस्ट रखेंगे फिर अपने। ओके सर। सर जैसे मैं कह रहा था मेरा सॉलिड स्टेट सर पहले से मतलब अच्छा था, मतलब अभी भी मैं पीएसएस करता हूँ तो मेरे से ज्यादातर हो जाते हैं। तो सर मैं मतलब मेरे पास नोट्स भी पूरे मैंने डिटेल बना रखे हैं। तो मैं सर मतलब अपने जो मैंने पहले ही जो तैयारी करके जो नोट्स बनाए थे
सर लेक्चर में 1.5x पे करके उन्हीं नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दूं पूरी बनाने की जगह? बिल्कुल कर सकते हो। और जैसे मेरी ऑर्गेनिक वीक थी तो मैं ज्यादा टाइम उसी पे दूं और हाँ, इसमें स्पीड अप कर लूं? वो कर सकते हो, बस उसमें ध्यान रखना कुछ स्किप नहीं हो रहा हो, और कोई नई चीज जो है वो जरूर अच्छे से आप उसको कर लो। ओके सर। वो एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जो लास्ट वाला पार्ट है ना डिफेक्ट्स वाला यस और ये सर। सब वाला, उसकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेना। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूमिका। सर मेरा नाम भूमिका है। हाँ भूमिका। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी जैसे लास्ट ईयर में हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं या स्ट्रांग है, तो जरूरी है कि हम उसके भी सारे लेक्चर्स मतलब देखें, मतलब नोट्स रिवाइज करके भी हो जाएगा वो? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूं आपको, चाहे 2x स्पीड पे देख लो, है ना, बट एक बार देखो जरूर, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह जाती है कई बार, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका 100% कवर हुआ हो, कुछ पार्ट रह गया हो, ठीक है, जनरली ऐसा कर लेते हैं, बट आप उसको थोड़ा फास्ट करके देख लो बस। सर एक्चुअली मैंने कोर्स भी थोड़ा सा अभी लेट ही ज्वाइन किया है, तो मेरे अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मतलब ये पहले स्टार्ट हो गया था ना 13 सितंबर से, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले किया है। तो जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन है, वेक्टर्स है, तो ये सब चैप्टर्स मतलब मैं अभी देखने बैठूं या फिर जो करंट चल रहा है अगर आपके बेसिक चैप्टर ठीक हैं तो फिर आप उनको स्किप कर सकते हो अभी के लिए। हाँ, जैसे मान लो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ या मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मेरा यूनिट डायमेंशन अच्छा है और मेरा वेक्टर्स बहुत बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं काइनेमेटिक्स से शुरू कर सकता हूँ। मैं बड़े चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे चैप्टर आप कर सकते एक्चुअली सर मतलब वही मतलब टाइप के जो चैप्टर्स हैं तो उसमें नोट्स भी हैं और मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये तो हो जाएगा, तो वो स्किप कर सकते हो ना? वो आप कर सकते हो, बेसिक चैप्टर बिल्कुल स्किप कर सकते हो, और लास्ट में जब अपने पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा सिलेबस खत्म होने के बाद, तो फिर आप उस टाइम पे उसको चाहो तो एक बार देख लेना। बाकी ऐसा मैं बड़े चैप्टर्स के लिए एडवाइस करूंगा, उनको मत स्किप करना, वो जो अच्छे चैप्टर्स होते हैं। हाँ सर। हाँ, ये आप कर सकते हो। ये तो सभी लोग आप में से जिसने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो और आपको पता है कि आपका यूनिट डायमेंशन अच्छा है, वेक्टर्स अच्छा है, मूल कंसेप्ट अच्छा है, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह आपको आते हैं, तो नो इश्यूज, वो सब हम यूज करते रहते हैं आगे चैप्टर में, तो वो वैसे भी और स्ट्रांग होता जाता है साथ साथ ही। यस सर। और ये कि जेई एडवांस के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो 1 से 3 अक्टूबर को है ऐसा वेबसाइट 3 अक्टूबर को पोस्टपोन कर दिया है, वो मैं कल करवा दूंगा चेंज, ठीक है, वो 10th को होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, और एडवांस के लिए आप अच्छे से एडवांस देकर आए, क्योंकि मतलब बिल्कुल ऐसे देकर आए कि सिलेक्ट होना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है कि एडवांस का पेपर होता कैसा है, ताकि आप अभी मतलब 12th के बाद आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी पहले एडवांस दिया आपने? नहीं सर, ये 12th के बाद अभी मैं मतलब पहला अटेम्प्ट ले। है। हाँ, जो भी लोग पहली बार एडवांस दे रहे हैं वो एडवांस बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं प्रॉपर कि आप सिलेक्ट होने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो आपको फील होना चाहिए, वो आपको अगले साल बहुत हेल्प करेगा, वो एक्सपीरियंस जो होगा आपका। हाँ रवीश। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ रवीश बोलो। सर वो मेरा पीएसएस तो कंप्लीट हो जाता है पर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाता है सर, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें रह जाते हैं सर। वो जो रहेगी वो आप लाइव डाउट सेशन में पूछना सर। मतलब अगर कंप्लीट करना मतलब बहुत सारा टाइम उतना नहीं दे पाते हैं जितना मॉड्यूल को चाहिए सर। मत दो, उसमें ये करना कि अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसके अंदर, देखो मैंने अभी बताया कि थोड़ा बहुत टाइम तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा ही मॉड्यूल करने में, क्योंकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग चल रही है उसके अंदर, ठीक है, बट हाँ उसके बाद आप बहुत ज्यादा जैसे डाउट है, अब आप 10-10 मिनट 15 मिनट एक एक क्वेश्चन पे लगे हुए हो, तो वो मत करो। वो फिर एक बार आपका जो लाइव डाउट सेशन होगा उसमें डाउट पूछने का फिर उसको दोबारा करना। ओके सर। है ना, बहुत ज्यादा टाइम उसमें किल मत करो। हाँ देव। गुड इवनिंग सर। कौन बोल रहे हैं? सर देव। अच्छा देव, ओके, वो नाम थोड़ा मैसेज। हाँ Sir, any kind of special tips to get concentrated on exactly chemistry? I get easily frustrated when I try to concentrate on chemistry, and I also easily forget the subject in compared to mathematics and physics. You forget formulas also? Yes, sir. And when I see any kinds of numerical type question in chemistry, I am getting more nervous. I got nervous. Actually, the point is
when you are studying, you're doing questions or not? Tell me frankly. Yes, sir. Yes, sir. If you are doing questions, then you will not feel this. You will not मेरा experience this, what you are telling वैसे me. कैंसिल Yes, sir. खत्म नहीं हो रहा है. When it comes to numerical types question, I took more time means in solving that numerical type problems. But they try to understand that you have to invest the time, because in exam you have to solve 80% numericals only. Yes, sir. So the material which has been provided to you, like PSS and the sheet, these two, at least 70 to 80% you have to complete. Like PSS you have to solve all, because you have their video solutions also in discussion part. Yes, sir. Okay, and after that you have to focus on the sheet. Now it may happen that sometimes you will not be able to solve questions in a row. Let's say you started and you can't solve 5 questions in a row. So don't get frustrated at that time, because when you leave things, they will not get better. You have to anyhow complete. Like you started with, you have to do 20 questions in 1 hour, or let's say 1.5 hours. And after 5 questions, you said, oh, I can't do any questions. This topic is very difficult for me, and you'll just leave it. I'll go for other subject. Don't do that. Okay, complete your first round. Initially, it will take time. Initially, it will feel like that kind of boring. But when you start solving questions, don't give up too easily. So 5th question, then go for 6th. If you are not able to solve those 6 questions also, then go to the concept again. Go to the theory, see the class sessions of similar type, and then again try to solve the questions. Build your subject, because once you'll start doing that, then you'll start getting confidence also. And once you get confidence, you can solve many type of questions, many type. I have experienced this when I was preparing, and I used to like we didn't have this facility of video lectures and all, so we used to have books. So when I didn't get any concept, what I used to do is that I used to go through reference books. I used to understand the concept first. Then there were many solved examples. So I used to try those solved examples by myself. And if I was not able to solve questions, I'll see the solution of that particular question. Then I'll again do it. So this is how I built concepts at that time. So you can easily do that. Initially, it will take time. So when you have like, let's say chemistry is weak for you, like you are feeling problem in chemistry, so start doing that for that. Because if you'll not do it right now, later you will leave it, and then in exam it will decrease your performance. So you have to focus on this thing. Whatever your weakness is, start working on that. This is the time to do it. So if you are feeling like you can't solve questions of physical chemistry, okay, then उसके पीछे पढ़ना है बिल्कुल. Go after it. इसको सीखना ही है. So when you go with that attitude, you will start learning the subject, and whatever doubts you have, problems you have, you can easily post them on the group also, or you can ask them in live doubt session or live doubt chat. In any these 3 medium, you can do that. So we're here to solve that. You have to do your part. Yes. Thank you, sir. Okay. Sir. हाँ प्रशांत. Sir, namaste, sir. Namaste. Sir, I am from Andhra Pradesh. Yes, Prashant. Sir, मेरे पास दूसरा कोचिंग मटेरियल बुक्स Cengage नमस्ते सभी है. Should I solve your materials or should I solve that books? See, first you have to solve the sheets and material provided. Actually, you may have plenty of books. देखो बहुत सारी किताबें, बहुत सारा मटेरियल अपने पास होता है. बट हमें मतलब पहली बात तो आप पास इतना टाइम नहीं कि आप सब कुछ सॉल्व कर पाओ. ये सारा टाइम होता है 12th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास. तो अभी आपको क्या करना है, रिलेवेंट कंटेंट और प्रिसाइज मटेरियल सॉल्व करना है. दैट्स ऑल. ठीक है. वैसे भी आपको खुद को ही पता है, मैं आपको बोल भी दूं आप कर लो, क्या आप कर पाओगे? ऑनेस्टली बताओ. सर my time not sufficient sir. नहीं मिलेगा, वो होगा. तो इसीलिए हम जो मटेरियल दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है. उसमें सब तरह के कंसेप्ट है, सब तरह के क्वेश्चंस हैं. वो करो और प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करो. दैट इज इनफ. Okay, thank you sir. ओके ओके. सर. हाँ, कौन बोल रहे हो? सर थिरू सर. हाँ अरे थिरू वापस आ गया. दूसरे लोगों को भी बोलने दो भाई. Yes sir. Next Actually, time. I was studying inorganic chemistry, sir. Sir, actually, I was studying, sir. Sir. So tell me, yes. Sir, actually, I was studying, sir. I got a doubt that This whether is- there will be this is- classes on Saturday, sir.
2nd October, no, there will be no class. It is actually national holiday, so we can't run offline classes also. So you Sir, will because yes, sir, because on October 3rd there is yeah, J advanced advanced. test. Yes. There will be no So classes on for 2nd of revision, October. Don't worry. sir, on Friday, sir. Friday there will be classes. You will get those classes on Sunday or Monday. Okay, sir. Hmm. Sir, whether there will be any classes uploaded on Friday 4 p.m. sir? Yes, there will be. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. हाँ केशव, चलिए आज के लिए आज का लास्ट है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में बाकी लोगों को जरूर मैं आपके सवालों के और जवाब दूंगा। हाँ केशव बोलो। सर वो मेरा एक डाउट था कि सर जब हम जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और जब उसके क्वेश्चंस करते हैं तो सर कभी कभी क्या होता है कि जब वो क्वेश्चंस नहीं लगते, चाहे मतलब ज्यादा लगाओ क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता करने का। तो क्या करें, लगे रहें या फिर स्किप करके कुछ और करें? उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जैसे मान लो आपने 5 मिनट 10 मिनट कर लिया, वो क्या होता है 10 मिनट में माइंड सड़ जाता है, दिमाग खराब हो चुका होता है, फिर वो उस कंसेप्ट में और ज्यादा नहीं सोच सकता। तो उसको आप या तो किसी और टाइम पे करो, या फिर जो मैंने सेकंड राउंड वाला मेथड बताया, पहली बार कर लो और फिर जब आप सेकंड राउंड में आओगे तो आप क्या है और कुछ क्वेश्चंस कर चुके होंगे, कंसेप्ट आ चुका होगा, कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, फिर आप उसको ट्राई कर सकते हो। और फिर भी ना हो ना तो एक तरीका बताता हूँ, पता नहीं आपके लिए काम करेगा नहीं, मेरे लिए करता था। रात को सोने से पहले उस क्वेश्चन को, वो 1-2 ही क्वेश्चन होते हैं ऐसे, रात को सोने से पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से और फिर सो जाओ। मोस्ट ऑफ द केसेस में सुबह आपको उसका आंसर मिल जाएगा खुद से ही। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैलकुलेशन चलाता रहता है, करके देखना ट्राई। ओके सर। सर जैसे हम आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन रख रहे हैं, वैसे बाकी टीचर्स के साथ भी हो सकता है? एक्चुअली आप लोगों का मेंटर मैं हूँ। अच्छा, तो आप, हाँ, आप लोग का जो बैच है वो मेरे पास है, ऐसे ही बाकी बैचेस जो बाकी टीचर्स के पास है, तो उनके भी इंटरैक्टिव सेशन होंगे। हाँ, आप उनसे करना चाहते हैं सेशन तो आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको मुझे बताना होगा, तो मैं उनका जब भी जूम सेशन होगा तो मैं आपके साथ आईडी शेयर कर दूंगा। वो कोई रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, बट आप लोगों की जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स है वो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो भाई, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। बाकी जिन लोगों के डाउट्स रह गए हैं, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर आऊंगा जल्दी। सर 1 मिनट सर। हाँ प्रशांत। सर ऐड मुकीम सर टू TSC ग्रुप सर। मुकीम सर का TSC ग्रुप में ऐड करो सर। हाँ, वो मैं करवा दूंगा आज उनको, अभी करवा ही रहा हूँ मैं, वही करने वाला था, वो सेशन था इसलिए, तो अभी मैं बोल देता हूँ हो जाएंगे आज। शीट को कितनी बार करना चाहिए? ठीक है सर। हाँ शशांक। सर ये जो आपका पैकेज होगा पेड है या फ्री है? कौन सा पैकेज? सर जो आप भिजवाओगे। यार वो आपको बस शिपिंग कॉस्ट और वो बेयर करनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको प्राइसिंग का बता दूंगा, बट वो जो आप प्रिंट निकालोगे उससे भी बहुत कम कॉस्ट में देंगे हम आपको। मतलब उसमें हम लोग कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, बट वो जो कॉस्टिंग आएगी, क्योंकि वो एडिशनल है, PDF तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है, तो इतना आपको समझना पड़ेगा, वो हम लोग का भी कंस्ट्रेंट है। सर उसमें बुक भी रहेगा क्या, जो वहां पे सर ऑफलाइन में आप देते हैं? हाँ, वैसा बुक ही आएगा आपको। वो बुक तो उसमें तो थियरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे उसको लेके। एक्चुअली क्या है, देखो वो हम आपको भिजवा तो देंगे, बट उसमें क्या होता है ना, जितना ज्यादा कंटेंट होता है ना, आपको लगता है मुझे ये भी कवर करना है, तो फिर वो तो हम जो आपको अभी शीट्स मिल रही हैं जैसी, तो वैसे आपको हार्ड कॉपीज भेजेंगे। सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट की भी? प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट की क्या करोगे, तो उसमें तो 1 पेज 2 पेज तो प्रिंट निकलता है ना, जो शीट होगी ना, जो मॉड्यूल जिसको आप मॉड्यूल। हाँ, वो एक्चुअली मैं उसको बचपन से शीट बोलता हूँ, तो शीट ही बोलता हूँ, मॉड्यूल बहुत कम निकलता है मुझसे। यस सर। तो शीट को 2 बार करना है सर? कोशिश करो, ऐसा 100% नहीं होगा। जैसे मैंने समझा ना कि मान लो जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा दिया, मैंने आज पैकिंग पढ़ाई थी पर पैकिंग के होमवर्क नहीं दिया, तो आप खुद अपनी शीट में से ढूंढ के पैकिंग के क्वेश्चन कर सकते हो, तो एक बार हो जाएंगे, फिर जब मैं दोबारा होमवर्क दूंगा तब आप उनको फिर दोबारा से ट्राई कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक्चुअली अब मुझे कहीं जाना है डॉक्टर्स के,
इसलिए ओके थैंक यू सर। ओके ओके थैंक Thank यू you, sir. एवरीवन, और मिलते हैं अगले Thank you, सेशन sir. में। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। सर हॉरर स्टोरी नहीं बनाते सर अभी? बनाएंगे यार, अभी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। बहुत टाइम हो गया सर। हाँ कल डालूंगा स्टोरी आपको। सर आपका डायलॉग बढ़िया लगता है, लॉ क्या क्या माहौल मिला कुवत। हाँ सर, इसका मतलब क्या है नवल विला को? सर रात में सर आपका स्टोरी सर 12 बजे देखते हैं सर। 12 बजे देखते हो, फिर आपको डर नहीं लगता? सर हॉस्टल में रहते हैं अकेले सर, डर लगता है सर। रात को मत देखा करो, दिन में देखा करो। लाहौल विला कुवत का मतलब मुझे एक्चुअली मुकीम सर ने समझाया था। उसका मतलब होता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज फाइन, कुछ गड़बड़ हो गई बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। वो होता है उसका मतलब, जहाँ जितना मुझे पता है। और एक्चुअली पता नहीं मुझे भी आदत कहाँ से लग गई, कोई सीरियल देख रहा था या कुछ था तो मुझे अच्छा लगा, तब से मैं यूज करने लग गया उसमें। सर मुझे लगा आपने कोई निमोनिक याद किया है क्योंकि नहीं, मुझे कहीं से मतलब मैं कुछ शायद टीवी या कुछ देख रहा था, पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं मोमेंट, तो तब से जबान पे चढ़ गया तो मैं यूज करता हूँ उसको। चलो मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर।